Very good morning to all. So, students, today we are going to learn about the maths and globes. This is the title of lesson number 6. So, before starting this chapter or topic, we can say just I am requesting you please open your textbook because this is one of the complicated. It's not too complicated, but for understanding you have need the textbook. So please open your textbook and try to understand the whole information which I am going to explain here. So dear students, actually this is the part latitudes and longitudes. Okay, so that is the two concepts are here which we want to clear. Okay, means हमें clear करना है actually what is the latitude and what is longitude. So in last period we have seen about the globes. Okay, the importance of globes and what are the globes, importance, needs, and all that things we learn about the globes. Okay, but today we are going to start the latitude and longitudes. Okay, so dear students, with the help of your textbook I am going to explain. So just concentrate on your textbook as well. You have to watch this video carefully. Okay, so dear students, here the latitude and longitude. So before that, actually latitude means I made here a small globe. Okay, मैंने एक यहाँ पर एक स्मॉल ग्लोब बनाया है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है और इस ग्लोब के माध्यम से आपको समझना है कि एक्चुअल में लेटिट्यूड क्या होता है। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको कंसेप्ट आपके बुक में दिया है कि देखते हैं हम, we have just learned that the imaginary lines midway on the globe is called equator. जैसे आपको पता है, मैंने लास्ट पीरियड में ये एक्सप्लेन किया कि ये जो सेंटर वाली इमेजिनरी लाइन है बेटा, ठीक है ना, जिसको दो पोर्शन में डिवाइड करती है ग्लोब को, उसे इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है ना, इट्स नोन एज द इक्वेटर. Now this line, okay, just look at the board and just this line is, this is the middle or imaginary line divided the globe into two portion. Okay, that is the north and that is south. Okay, so and this mid line, okay, means imaginary line known as the equator, जैसे आपको पता है. then आगे देखते हैं हम, there are parallel lines running from west to east. ठीक है, यहाँ पर आप ग्लोब को ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर कुछ पैरेलल लाइंस हैं जो कि क्या करते हैं, और रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक वो क्या करते हैं, रनिंग करते हैं. ठीक है ना, वेस्ट ईस्ट, दिस इज ए नॉर्थ साउथ एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. ओके, सो दे आर रनिंग थ्रू द वेस्ट एंड ईस्ट. These are called parallels or latitude. Okay, these are called parallels or latitude. Clear? Actually, these line we are talking about this line which is running through the west and east called the parallels or latitude. ठीक है ना, means we can say it is the horizontal lines. Okay, latitude means horizontal lines. जो आड़ी लाइन है आपको ग्लोब के ऊपर दिखाई दे रही है उसे क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं. ठीक है ना, जैसे जनरली आप ग्लोब का ऑब्जर्व करेंगे, उसका अध्ययन करोगे बेटा स्कूल में, और स्कूल में अवेलेबल रहता है या फिर आपके घर में अगर हो तो अच्छी बात है. डेफिनेटली उसको आप ऑब्जर्व करिए, उसमें कुछ पैरेलल लाइंस दिखेंगे आपको जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दिखाई देंगे. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसी को लैटिट्यूड कहा जाता है. अंडरस्टूड? क्लियर? सो लैटिट्यूड के बारे में हम देखेंगे, कुछ डिजिट या फिर आंकड़े, कुछ फिगर आपको दिए हैं इसकी इंफॉर्मेशन. अभी इसे हम देखेंगे बेटा. सो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर इन योर टेक्स्ट बुक. जस्ट ऑब्जर्व योर टेक्स्ट बुक एज वेल आई राइट आल्सो ऑन द बोर्ड. सो जस्ट दैट इज द some figure means numerical information about the latitudes. Okay, so now here equator is equal to 0 डिग्री. ओके, जैसे आपको दिया है फर्स्ट पॉइंट में, there are 19, फर्स्ट देखते हैं हम, there are 19 parallels in the northern hemisphere and 19 parallels in the southern hemisphere. These are 118 total in the important parallels of latitude are. अभी देखिए बेटा, जो पैरेलल्स दिया है, पैरेलल्स में एक्चुअली दिस इज द लाइनिंग दैट नोन एज द पैरेलल्स, जो पूरी लाइनिंग है जो कि हॉरिजॉन्टल वे में है, हॉरिजॉन्टल मेथड में है, जिसे
जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, वो टोटल कितनी है 19 पैरेलल्स इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ जैसे कि हमने यहाँ पर डिवाइड किए हैं इक्वेटर से, दैट पोर्शन में टॉप पोर्शन नोन एज द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड दैट इज द साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये साउथ हेमिस्फीयर है। तो टोटल 19 एंड 19 इक्वल टू 180। ठीक है, जैसे टॉप पोर्शन में और डाउन पोर्शन में, ठीक है, 19 है और 19 है, मींस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड 19 parallels in southern hemisphere is equal to 180 total parallels are there on the globe. Okay, so that is called the latitude. उसे क्या कहा जाता है, latitude. Clear? Now there is the equator is there 0 degree. Okay, so that is the equator. Its scale is 0 degree. Then after that we will see here the TOC. Actually I wrote here in a shortcut, but in your textbook given there Tropic of Capricorn. देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट। अब इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका जो स्केल दिया हुआ है, इसका जो क्वांटिटी दिया है वो कितना है 23.5 डिग्री इन साउथ। ठीक है, अभी साउथ पोर्शन जो है नीचे दिया हुआ है। ठीक है ना, अभी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है ना बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मींस दैट लैंड। ओके, TOC आई रोट हियर TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, व्हिच इज इन अ साउथ हेमिस्फीयर, जो कहां पर है, साउथ हेमिस्फीयर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कितना स्केल दिया है 23.5 डिग्री इन अ साउथ सेक्टर और साउथ हेमिस्फीयर वी कैन सी। Okay, now the next one is, I wrote here in a shortcut way, but with the help of your textbook you can just imagine you can observe, you can understand the full form of AC. AC means Antarctic Circle. Okay, Antarctic Circle जिसका स्केल आपको दिया हुआ है 66.5 डिग्री इन साउथ। ओके, 66.5 डिग्री इन द साउथ, ये इसका स्केल है जो कि दिया हुआ है। मींस यहाँ पर इसका आएगा 66.5 डिग्री इन साउथ। ओके, सो दैट इज द एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी ये तो हुई अपनी इसकी बात साउथ हेमिस्फीयर की बात। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर को। इसका भी कुछ क्वांटिटी आपके बुक में दिया है जो कि आपको ऑब्जर्व करना है। फिगर में उसके आंकड़े दिए हैं बेटा, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इन अ नॉर्थर्न प्लेस, कितना है इसका स्केल 23.5 डिग्री। ठीक है ना, 23। अभी हम नॉर्थर्न की बात कर रहे हैं, मींस दैट लाइन इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, TOC I wrote here in a shortcut way. TOC means Tropic of Cancer in a north hemisphere, and its scale given there in your textbook 23.5 degree in the north. Tropic of Cancer कितना है 23.5 degree in the north hemisphere. Clear? Then after that Arctic Circle, again the Arctic Circle given there, so its scale is 66. Just look at the book and observe there, this is the 66.5 degree in a northern sector. Okay, ये जो है इसका कितना दिया है बेटा 66.5 degree in the northern hemisphere. Okay, so that was the brief information given about the globe and their latitudes. So clear? Actually, what is the latitude? Now here the horizontal lines which is shown on the globe, that lines called the latitude. Okay, so there are total how many lines? 180, means 19 parallels in a northern hemisphere and 19 parallels in southern hemisphere is equal to 180 total. मींस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसका नॉर्थन प्लस साउथर्न का अलग अलग स्केल आपको दिया हुआ
है, जो कि आपको ऑब्जर्व कर समझना है। बिकॉज द डायग्राम इज गिवन हियर, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व इट। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और सारी जो डिजिट दिए हैं लैटिट्यूड से रिलेटेड जो कि ग्लोब पे है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कुछ समझना है। ओके, सो जस्ट आई होप दैट स्टूडेंट व्हाट एवर आई एक्सप्लेन हियर, दिस इज नॉट टू मोर डिफिकल्ट for understanding. I hope that you understood very well. Now we will go on the next, means we will see the longitude. Actually it is the oppose. Longitude क्या है, oppose है। जैसे हमने देखिए बेटा कि लैटिट्यूड में जो हम ग्लोब बनाए हैं, ग्लोब में जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिखाई देती है आपको, इसे लैटिट्यूड कहते हैं, लेकिन इसके विपरीत, इसके अपोज है जो वर्टिकल लाइन दिखाई देती है, ठीक है ना। वर्टिकल मींस सीधी लाइन, ठीक है ना, उसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्लियर। अभी इसकी कुछ कंसेप्ट दी हुई है आपके बुक में, जिसे हम पढ़ना चाहेंगे। नाउ हियर एक्चुअली few information over there about the latitude. Now the number 3 point is all lines are measured in degree, ठीक है। हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको मेजर किस में किया जाता है, डिग्री में। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर, ओके। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, मींस जितने भी लाइंस है किसकी लैटिट्यूड की, उसे उस लाइन को डिग्री में काउंट किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट गिवन हियर इन योर टेक्स्ट बुक, द इक्वेटर मार्क एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर को, जैसे हमने यहाँ पर देखिए, उसको मार्क किया गया है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑन द ग्लोब, ठीक है। ये जो है इक्वेटर, ये लार्जेस्ट सर्कल है किसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर। तो आपको ध्यान में रखना है, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑन द ग्लोब, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट गिवन हियर which is very important, the north pole is at 19 degree north and south pole is 19 degree in south, okay। मींस कहने का मतलब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है ना, दोनों को इक्वेटर से डिवाइड किया गया है, इसका जो स्केल है सेम है, ठीक है। सेम मींस 19 डिग्री एंड 19 डिग्री, बट द डायरेक्शन चेंज, northern and southern, okay। So that was the information basic also given in your textbook, just you have to read out and just understood, okay। Now we will see the longitude, okay। Longitude means actually it's जैसे अभी रिसेंटली बताया था कि विपरीत है, लैटिट्यूड से विपरीत है, ठीक है ना। अभी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस देखिए, अभी इसमें है वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना। मींस ये जो वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही है आपको, इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अभी जैसे आपको बुक में देखो बेटा, आपके एक दिस इज योर टेक्स्ट बुक एंड आल्सो देयर इज द इमेज ऑफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ओके। जस्ट ऑब्जर्व दैट इमेज व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। So the imaginary vertical lines running from north pole and south pole are called longitude, ठीक है। अब इमेजिनरी जो वर्टिकल लाइंस है, इमेजिनरी जो वर्टिकल लाइंस है, जो कहाँ से रनिंग होती है, नॉर्थ एंड साउथ, ओके, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इसी लाइन को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्लियर। अभी इसमें कुछ स्केल्स दिए हैं लॉन्गिट्यूड में, जो कि आपको इस ग्लोब के पिक्स के माध्यम से समझ में आएगा। इसमें दीज आर 359 इन नंबर्स, जैसे हमने लिखे यहाँ पर हाउ मेनी लाइंस आर देयर टोटल, सो देयर आर 359 इन नंबर्स। नंबर 2 पॉइंट दिया है, ऑल दिस लाइन आर सेम लेंथ, ठीक है। मींस जितनी भी लाइंस हैं, ऑल दैट लाइंस आर इन अ सेम लेंथ, उनकी जो लंबाई है वो कैसी है, सेम है, सिमिलर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड व्हिच पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन, ठीक है, और नियर लंदन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं, ये जो है ये पासेस होती है लंदन में, ठीक है ना। लंदन एक जो कंट्री है, ठीक है ना, लंदन। तो ये जो है इसको पीएम कहा गया। पीएम का मतलब होता है
जो हम वॉच लिखते हैं वो नहीं, एक्चुअली जो पीएम होता है प्राइम मेरिडियन, जो कि लंदन में 0 डिग्री सेल्सियस लैटिट्यूड है उसका, कितना है लैटिट्यूड 0 डिग्री सेल्सियस, और उसी लाइन को जो लंदन में ग्रीनविच से पास होती है, ठीक है ना, नियर ग्रीनविच, दैट लाइन नोन एज द प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। तो ये जो लंदन के सेंटर वाली जो लाइन है जो कि लंदन से ग्रीनविच तक पास होती है उसको प्राइम मेरिडियन कहा गया है, ठीक है। और इसका स्केल दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द एरिया टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। अभी जो प्राइम मेरिडियन का जो एरिया है टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है ना, टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। मींस ईस्ट से लेकर ये वेस्ट तक जो भी हेमिस्फीयर में जाता है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा गया है। देखो फिर से एक बार ये सेंटेंस, ये जो पॉइंट है, द एरिया टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन से जो एरिया ईस्ट की तरफ जाता है is called eastern hemisphere, that is the eastern hemisphere, okay, from the PM means prime meridian से, then the area towards the west of the prime meridian is called western hemisphere। means कहने का मतलब ये जो एरिया है इसको क्या ईस्टर्न मेरिडियन कहा गया, और ये जो एरिया है कवर्ड किया हुआ उसको वेस्टर्न मेरिडियन कहा गया है। मींस actually from the PM meridian is go from the eastern side and that is go from the western side, that's a clear here, okay। so that was the information about the longitudes, okay, means actually the concept, both concepts are opposite, okay, दोनों की जो है अपोजिट कंसेप्ट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। so that was the longitude and latitude। I hope that you understood very well। all these skills are given here, just read out it and try to understand the image which is given in your textbook, so it can you can easily understand, okay। so that are the some important skills and that things you have to remember। इसको क्या करना है, आपको रिमेम्बर करना है, याद रखना है, ठीक है। so that was the longitude, means actually that is vertical lines and that is horizontal lines, okay। so students, actually that was the today's question, okay। I hope that whatever I explained here you understood very well। thank you for listening that video। now your task, I am a simple task I am giving here to you, and that just make the diagram of globe। आपको क्या करना है, जो आपकी नोटबुक है बनाई हुई EVS सब्जेक्ट की, बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन यू हैव टू मेक द ग्लोब, ओके, एंड यू हैव टू डिफाइन the concept, you have to clear the concept latitude and latitude and longitude, okay, in your notebook। so just thank you for you listen carefully and watch carefully this video। thank you for today's, okay, we will meet in the next video। thanks and have a nice day to all, thank you।